Hello, students. Hi, everybody. How are you? I hope you are all fine. Today, I, Hemant, once again welcome you at Hemdisha English classes. And today, it is my pleasure to summarize the lesson from Vistas 12 class standard. Lesson number 3, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. First of all, I would like to introduce you this chapter. In introduction, I would like to utter few lines. In the journey to the end of the earth, Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest, and windiest continent in the world, Antarctica. The world's geological history is tapped in Antarctica. Job Green Students on ICE program aims at taking high school students to the end of the world. Though she thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past, and future. Now, summary. Beginning of the journey, what happens? The narrator boarded a Russian research ship, the academic Ch-3. Once again, I would like to repeat academic Ch-3. It was heading towards the coldest, driest, and the windiest continent in the world, Antarctica. The journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras, Chennai. He crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least 3 ecospheres. He traveled over 100 hours in car, aeroplane, and ship to reach there. Southern supercontinent Gondwana. Regarding this, the narrator has explained 650 million years ago, a giant southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist. It centered roughly around present day Antarctica. Human beings had not arrived on the global scene. The climate at the time was much warmer. It supported a huge variety of flora and fauna. When the dinosaurs become totally extinct and the age of mammals again. This line I would like to repeat again. When the dinosaurs became totally extinct, the age of the mammals began. The landmass was forced to separate into countries as they exist today. Study of Antarctica now. The purpose of the visit was to know more about Antarctica. It is to understand the significance of the Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica. Icebergs are as big as countries. Days go on and on in 24 austral summer light. Human impact. What about human impact? Very nicely, the narrator has made us understand the most hotly contested debate of our time in whether West Antarctica ice sheet will melt entirely or no. If we want to study the Earth's past, present, and future, Antarctica is the place for us to go. Antarctica has a simple ecosystem and lacks of biodiversity. It is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. What I mean to say, results. Scientists warn that a further depletion of the ozone layer will affect the lives of sea animals and birds of region. It will also affect the global carbon cycle. The burning of fossil fuels has polluted the atmosphere. It has created a blanket of carbon dioxide around the world. It is increasing the global temperature, which is visible in Antarctica when we see icebergs melting away.
It shows how minor changes in the atmosphere can cause huge effect. If the global temperature keeps on increasing, the human race may be in peril. Student on Ice is a program which provides the students an ample opportunity to understand how global temperature can be a big threat to human existence. It inculcates a new understanding in them. Geo Green thinks that high school students are the future policymakers. They can help in saving the earth from ecological dangers and the effect of global warming. And next, I would like to explain in brief effect of the climatic change. The author gives us an example to show how small changes in the atmosphere can be threatening. The microscopic phytoplankton phytoplanktons are single-celled plants. They nourish the entire southern ocean's food chain. They use the sun's energy to assimilate carbon and supply oxygen. Any further depletion in the ozone layer may affect this functioning and indirectly affect the lives of all marine animals. Now, walk on the oceans. It is the most important thing here I would like to highlight, it was the most thrilling experience of the visit. They climbed down the gangplank and walked on the ocean. There were 52 persons. They were walking on a meter thick ice pack. Under the ice pass, there was 180 meters of living, breathing saltwater. Seals were enjoying themselves in the sun on ice. The narrator was wondering about the beauty of the palace. He wished it would not become a warm place as it used to be millions of years ago. If it happens, the result can be ruinous. In the conclusion, to sum up, we learn in detail about the climate changes and how it is impacting our lives and of other living beings dangerously. It serves as a wake up call to start working to make the planet a healthier place. So, students, this is summary in English I have completed, and I hope you will understand and you will go thoroughly. As usual, I would request you to open your book first, read that, and after that you go through this summary in English. And before going to Hindi translation of this summary, I would like to once again request to you to subscribe, like and share my channel so you will be benefited into time to time notification for next lessons, for next summaries, and your friends also. So please go through thoroughly and try to grasp maximum abilities with your abilities, and have a good life, have a good marks in your examination. So this was the summary of the book from Vistas of 12th class, lesson number 3, chapter number 3, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. By this, I would like to end, and I will have to switch over to Hindi summary. विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हेमदिशा इंग्लिश क्लासेस में। यहाँ पे मैं आज एक नया पाठ विस्तार से 12वीं क्लास से आपको इसकी समराइज़ करने आया हूँ। बहुत अच्छा पाठ है और आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, जिसको आप पढ़ के सुन के अपने आप को परीक्षा के लिए बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। इस पाठ का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये तिशानी दोषी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 3 विस्तास 12वीं क्लास के पाठ से, सप्लीमेंट्री रीडर जो है विस्तास वहाँ से। तो मैं परिचय सबसे पहले लेना चाहूँगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिशानी दोषी ने दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे हवा वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की यात्रा का पूर्णतः वर्णन किया है। हाँ, दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है,
जॉब गिंग के स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के छोर तक ले जाना है। दोषी सोचते हैं कि अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने का स्थान है। आइए अब विस्तृत रूप से समरी के ऊपर मैं प्रकाश डालता हूँ। यात्रा की शुरुआत कैसी होती है? कथाकार जो है वो एक रूसी शोध जहाज एकेडमिक शोकाल्स्की में सवार हुआ। यह दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे हवा वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। उनकी यात्रा मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई कहलाता है, उसमें भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से शुरुआत हुई। उन्होंने 9 समय क्षेत्रों, 6 चौकियों, 3 जल निकायों और कम से कम 3 परिस्थिति क्षेत्रों को पार किया। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए कार, हवाई जहाज और पानी के जहाज में 100 घंटे से अधिक की यात्रा की। अब दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना की बात जहां आती है, 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में मौजूद था। यह लगभग वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। मनुष्य वैश्विक पटल पर नहीं आया था। उस समय का वातावरण बहुत गर्म था। उसने वनस्पति और जीवों की एक विशाल विविधता का समर्थन किया। जब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, तो भूभाग को देशों में अलग होने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वे आज भी मौजूद है। अंटार्कटिका का अध्ययन हम करते हैं। इसका यात्रा का उद्देश्य अंटार्कटिका के बारे में अधिक जानना था। ये कार्डिलरन फोल्डर्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के महत्व को समझना है। ओजोन और कार्बन, विकास और विलुप्ति। विलुप्ति मतलब गायब हो जाना। पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा का 90% अंटार्कटिका में जमा है और उतने ही बड़े बड़े हिमखंड हैं जितने देश। 24 घंटे की ऑस्ट्रल समर लाइट में दिन रात चलते रहते हैं। मानवीय प्रभाव के ऊपर हम यदि वर्णन करें तो वो ऐसा है। हमारे समय की सबसे गर्मागर्म वार्ता यह है कि क्या पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर पूरी तरह से पिघलेगी या नहीं। अगर हम पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका जाने का स्थान जो है वो अंटार्कटिका में एक साधारण पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें जैव विविधता का अभाव है। यह अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है कि पर्यावरण में थोड़े से परिवर्तन के बड़े बड़े परिणाम कैसे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओजोन परत के घटने से क्षेत्र के समुद्री जानवरों और पक्षियों के जीवन पर असर पड़ेगा। यह वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। जीवाश्म ईंधन के चलने से वातावरण प्रदूषित हो गया है। इसने दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बनाया है। यह वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, जो कि अंटार्कटिका में दिखाई देता है। जब हम बर्फ़ के टुकड़ों को पिघलते हुए देखते हैं ना, तो यह दिखाता है कि वातावरण में मामूली बदलाव कैसे बड़े प्रभाव का कारण बन सकते हैं। हाँ, यदि वैश्विक तापमान बढ़ता रहा तो मानव जाति संकट में पड़ सकती है। स्टूडेंट ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को यह समझने का पर्याप्त मौका देता है कि कैसे वैश्विक तापमान मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा निर्मित कर सकता है। ये एक बात जरूर है कि इसमें नई समझ आती है। जॉब ग्रीन का सोचना है कि हाई स्कूल के छात्र भविष्य के नीति निर्माता है। वे पृथ्वी को पारिस्थितिक खतरों और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। अब देखिए एक ऐसा प्रभाव, कैसा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। यह दिखाने के लिए लेखक एक उदाहरण पेश करता है कि वातावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कैसे खतरनाक हो सकते हैं। सूक्ष्म फाइटो प्लांट एकल कोशिका वाले पौधे हैं। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा। सूक्ष्म फाइटो प्लांक्टन एकल कोशिका वाले पौधे हैं। वे पूरे दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला का पोषण करते हैं।
वे कार्बन को आत्मसात करने और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत में कोई और कमी इस कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से सभी समुद्री जानवरों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रोग्राम समुद्र पे चलो। यह यात्रा का सबसे रोमांचक अनुभव था। वे गैंगपैंक पर चढ़ गए और समुद्र पर चले गए। पूरे 52 व्यक्ति थे वे 1 मीटर मोटे आइसपैक पर चल रहे थे। आइसपैक के नीचे 180 मीटर जीवित श्वास खारा पानी था। सील बर्फ पर धूप में आनंद ले रहे थे। वर्णनकर्ता उस जगह की सुंदरता के बारे में सोच रहा था। उनकी इच्छा थी कि यह एक गर्म स्थान न बने जैसा कि लाखों साल पहले हुआ करता था। अगर ऐसा होता है तो परिणाम भयंकर विनाशकारी हो सकते हैं। आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है, सारांश इसका ये है कि विस्तार से सीखने का मौका मिलता है। किसके बारे में? जलवायु परिवर्तन के बारे में, और यह कैसे हमारे अन्य जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह ग्रह को स्वास्थ्य स्थान बनाने के लिए काम करना शुरू करने के लिए एक जागरूक काल के रूप में कार्य करता है। स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको कुछ कठिन वर्ड में उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगा जो पाठ में दिए गए हैं। जैसे इकोस्फेयर्स, ECOSPHERES, इसका मतलब है जीवों के द्वारा रहने योग्य ब्रह्मांड के हिस्से, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैबिटेबल बाय लिविंग ऑर्गन्स। इमेंसिटी, IMMENSITY, फिर से सुनिएगा, IMMENSITY। एक्सट्रीमली लार्ज साइज, बहुत बड़ा आकार। बकल, BUCKLE, BUCKLE, बैंड, इसका मतलब होता है झुकना। ब्लैस, BLASE, बिना किसी चिंता के। मैं फिर से रिपीट करूँगा, BLASE, बिना किसी चिंता की, विदाउट एनी काइंड ऑफ वरीज। तो विद्यार्थियों, ये थी समरी। सारांश में मैंने बहुत कोशिश अपनी तरफ से करी है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप समरी पढ़ने से पहले किताब खोलिए, किताब पढ़िए, उसके बाद समरी सुनिए, रुक रुक के सुनिएगा। मेरा विश्वास है आपको समझ में आएगी और परीक्षा में अव्वल मार्क्स आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही मैं फिर से गुजारिश करूंगा, जो कि हमेशा करता हूं, मेरे इस लेसन को चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशंस और मिलते चलेंगे नए नए पाठ के बारे में। और अपने सहपाठियों में शेयर कीजिए, जिससे सबको फ़ायदा मिलेगा। अच्छे नंबर लाइएगा, अच्छी ज़िंदगी हो आपकी, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ पे आपसे विदा चाहता हूँ अगले पाठ तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।